सिर्फ दो चीज़ों पे हमारी बॉडी चलती है, जो हम खा रहे हैं और जो सांस ले रहे हैं। और बिकॉज ये होलिस्टिक प्रोग्राम है हमारा प्रोत्साहन प्रोग्राम, हम पूरी होलिस्टिकली इस पे ध्यान देते हैं। तो ब्रीदिंग के बारे में हम पहले ही प्रैक्टिस भी कर चुके हैं आप सब लोग, और देख भी चुके हैं उसके इफेक्ट की कितनी आसानी से हम लोग अपने जो है बीपी को हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमने ब्रीदिंग की वेरियस प्रैक्टिसेस की थी इससे पहले, ये उसी का एक एडवांस लेवल है। बट उससे पहले मैं ये शुरू करूं, आई एम ए वेरी बिग एम एस धोनी फैन, ठीक है। और आई डोंट थिंक कि क्रिकेट में एम एस धोनी से ज़्यादा किसी ने भी अचीव किया है। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रेजेंटेशन टुडे, जो हम मेन हमारा मुद्दा है, मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूँ। I feel for me most of the time is good time. Either you are learning or you're enjoying what you have learned. So it's not the up. Is it audible? You know, you lose some, you win some. When you win, you celebrate. When you lose, you learn. So either ways, I'm having a good time. So how do you keep yourself so cool? I mean, as you said, it's always you are unfazed by good and bad. So how do you maintain that calm, cool exterior? Very simple. Don't think about the result. It's the result that puts pressure on us. You know, what if this happens? What if we don't win the game? What if we don't get selected? But again, worry about the controllables. You know, and whatever the controllables are, we take care of it. We'll get the desired result. If we don't get the desired result, we'll improve. We'll change our plans. We'll execute better, and we'll get a chance to prove ourselves again. So, you know, that's what it is. Thinking about the result never gives you result. Yes, you may have a target in mind, but what is more important is to take care of the small steps in life. You know, what needs to be done, what I am supposed to do, what extra I can do, and you know, that will help us achieve the target. During the 2011 World Cup, and it was like 10 or 15, 20 runs needed on the finals, and the stadium started to chant Vande Mataram, and I believe, you know, that was something. I don't get goosebumps. I don't know, maybe something wrong with me. I don't get goosebumps, but you know, that moment, I don't think I would ever be able to get into a similar atmosphere. You know, there was something very beautiful about it, and when they started to chant, and let's say if it was moving from one side of the stadium to the other, the ears didn't actually move, and I feel बेसिकली धोनी ये बोलता है कि ही डज नॉट केयर अबाउट फ्यूचर और पास्ट। अनदर वीडियो, अनदर इंटरव्यू। I think I am as each and every individual is. We all feel the frustration, we all feel the irritation when things are not going our way. But what is important is, you know, does frustration lead to anything that is good for the team? You know, what at that point of time, what I am thinking is what needs to be done. You know, गलती हो सकती है किसी इंडिविजुअल से हुई हो या पूरी टीम से हुई हो, कि जो भी हमारा प्लान था, maybe we didn't execute our plans well. You know, whatever the format may be, T20 हो, Test cricket हो या 50 over format हो. So I like to get into the process again. You know, what can be done right now, depending on the situation. Test match में you have 2 innings, so at times you get slightly longer duration to plan out your next move. One day में थोड़ा time constraint होता है. T20 में everything happens very quickly, so the demands are very different. But I would say that, you know, I feel equally frustrated. I also feel angry at times. I feel disappointed. But what is important is none of these are constructive. You know, what needs to be done right now is more important than any of these emotions. So when I get into the thinking of what needs to be, Nabi mujhe kya karna hai, what is the next thing that I can plan, who is the individual I can use, and once I get into it, you know, I'm controlling my emotions in a much better way. So I would say I'm like everyone else. It's just that I control my emotions slightly better than some of the other individuals. That means we can control our emotions basically. तो जो बात इन्होंने कही है धोनी ने, बिकॉज आई कंसिडर हिम एज माई मेंटर, वन ऑफ माई मेंटर्स। तो प्रेजेंट में रह के अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे तो हम बेटर डिसीजंस ले पाते हैं इन एनी वे, क्योंकि हम फिर उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ही ऑलवेज से कि आई फॉलो द प्रोसेस। और इतने सारे लोग इनके बारे में बोलते हैं, इतने प्लेयर्स जो इनके अंडर खेले हैं, इंडियन फॉरेनर्स, ओपोनेंट्स,
तो वो सब बोलते हैं यस इट इज़ पॉसिबल टू कंट्रोल इमोशंस, एंड उसी के बेसिस पे फिर हम डिसीजन बेटर लेके हमारा फ्यूचर बेटर बना सकते हैं। ठीक है, नाउ कम बैक टू आवर मेन जो आज का टॉपिक है, बुद्धिस्ट ब्रीदिंग टेक्निक्स। देयर आर मेनी बुक्स, आई हैव रेड बुद्ध का धम्म एक बुक है, इट्स रिटन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने लास्ट 6 years ऑफ लाइफ ही इज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, एंड उन्होंने ये किताब लिखी थी बुद्ध का धम्म। उसमें वैसे काफ़ी अच्छा, और इवन वेरियस मोनेस्ट्री यू गो यू विल बी टॉट समथिंग। देखिए, जब हम लोग मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम क्यों स्ट्रेस क्यों होता है हमारा, तो या तो हम लोग रहते हैं हमारे पास्ट में मोस्टली। ठीक है, पास्ट में क्या है, पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं मोस्टली, नींद ना आने का कारण पूछते हैं लोग। तो पास्ट में मोस्टली क्या, हम बहुत अच्छी जो हमारी एक्सपीरियंसेस होते हैं पास्ट के, वो तो हम याद रखते नहीं है, या यूजुअली मोस्टली वो नहीं हम रीथिंक करते। हमारे थिंकिंग प्रोसेस में या पुराना कोई रिग्रेट हो गया, या कोई पास्ट में हमारे को फेलियर हुआ था, या कभी हमने कुछ चाहा था और वो पा नहीं पाए, एंड सो मेनी थिंग्स, कोई गुस्सा किसी पे रह गया, रिमोर्स, कभी किसी से जेलसी, तो हम पास्ट की फीलिंग्स को रीलिव करते रहते हैं, और उस वजह से हम आज प्रेजेंट में नहीं रहते। इवन आई एम नॉट एबल टू, आई एम प्रैक्टिसिंग दिस इज ए प्रैक्टिस विच यू, जैसे हम किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं, दिस नीड्स प्रैक्टिस। तो ये नहीं कहूंगा कि भाई हम आज से ही धोनी बन जाएंगे, या धोनी को भी ये मुश्किल नहीं आती, वो भी हारता है, इट्स विन लूज सिचुएशन, बट आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, तभी आप स्ट्रेस को ओवरकम कर पाओगे। सेकेंडली, अदरवाइज जब पास्ट में नहीं होते तो हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि भाई कल क्या होगा, आज की डिसीजन लेनी है हमने, कल तो हमारे आज के डिसीजन पे डिपेंड करता है ना। और मोस्टली फ्यूचर में हम लोग जो सोचते हैं, हम कभी भी, हमने तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज की, और मैं कोशिश भी करता हूं, जैसे मैं खरदुंगला के लिए गया था तो आई वाज विजुअलाइजिंग कि मुझे मेडल मिल रहा है, आई हैव कंप्लीटेड इट, बट हम बहुत कम ये पॉजिटिव विजुअलाइजेशन यूज करते हैं। ज्यादातर हमारे मन में डर होता है, एंग्जाइटी होती है फ्यूचर को लेके, अनसर्टेनिटी फ्यूचर में होती है, कल क्या होगा किसको पता है। लेकिन हमारा वो, हम बेसिकली जो है उस डर को, एंग्जाइटी को बढ़ाते रहते हैं, उस अनसर्टेनिटी से ही अटैच रहते हैं। और जब हम बुद्धिज्म में जाते हैं, बुद्धिज्म में यू रिपीटेडली सी ए वर्ड बाय बुद्धा, वो बोलते हैं दृष्ट धर्म सुखा विहारा। इसका मतलब होता है जो सुख है वो प्रेजेंट में ही है। दृष्ट धाम का मतलब होता है, धाम का मतलब होता है रहना ना, दृष्ट का मतलब होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट में रह के ही आपको सुख मिल सकता है। तो वट एवर हैप्पीनेस एंड जॉय, तो बुद्धा की पूरी टीचिंग्स में जितनी भी मेडिटेशन टेक्निक्स और ब्रीदिंग टेक्निक्स वो बताते हैं, उनका बेसिक पर्पस यही होता है टू ब्रिंग योर यूनियन टू प्रेजेंट। योगा भी एक यूनियन कहते हैं ना, योगा, तो इट्स ए यूनियन वेयर यू ब्रिंग योर अटेंशन, योर माइंड टू द प्रेजेंट। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट द की क्या एक्सरसाइजेस हैं, क्या टेक्निक्स हैं। और ये एक वियतनामीज मॉन्क हैं, थिच नेक हैंड, आई डोंट थिंक ही इज अलाइव राइट नाउ, बट इनके बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज हैं, एंड ऑल्सो आई हैव अटेंडेड फ्यू सेशंस इन सम मोनेस्ट्रीज। तो वो ये टीचिंग उनकी टेक्निक से आई है बेसिकली, और ये बुद्धिज्म के सभी टेक्निक्स में ये बताया जाता है। सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज, जो हम पहले भी अपनी टेक्निक्स में यूज कर रहे हैं, अवेयरनेस ऑफ योर इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ। हम लोग ना ऑटोमेटिकली सांस लिए जा रहे हैं, और जब एंग्जियस होते हैं तो बहुत ही शैलो और रैपिड ब्रीथ करते हैं, जिससे हम वेगस नर्व को, जैसे हम कह रहे हैं ना, वेगस नर्व को हमने डीप ब्रीदिंग से कैसे हैक कर लिया था, एंड वी कैन डिक्रीज और बीपी, डायबिटीज, एंड इवन इंप्रूव आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अदर थिंग्स, renal function etc. by hacking the vagus nerve through using a slow and deep breathing techniques. So similarly, first step is be aware of your in breath and out breath. जब भी ये प्रैक्टिस करें, ऑफ कोर्स आपको डिटैच होना पड़ेगा, आंखें बंद करके आपको अपने इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ पे ही सारा फोकस लेके आना पड़ेगा, नंबर 1. द सेकेंड पार्ट इज फॉलो द इन ब्रेथ एंड आउट ब्रेथ, मतलब इन द टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो एक टाइम में आप कितनी इन ब्रेथ ले रहे हो, दैट टाइम पीरियड मे बी 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, वट एवर, यू आर फॉलोइंग थ्रू आउट द इन ब्रेथ एंड फॉलोइंग थ्रू आउट द आउट ब्रेथ. तो इसका मतलब क्या है, दिस विल हेल्प यू फोकस मोर
ऑन योर ब्रीदिंग। जो आपका माइंड इधर उधर भागता है हम लोगों का, जो नॉर्मली आजकल तो अटेंशन स्पैन इस प्रेजेंट जनरेशन का, हम सबका, मैं भी अपना कंपेयर करूं कॉलेज से, कॉलेज में जब हम पढ़ाई किया करते थे वी वर मोर फोकस्ड। एक चीज को एक ही बार पढ़ने से हमें 2 बार पढ़ने से याद हो जाती थी। वी कीप थिंकिंग अबाउट रिवाइज करते रहते थे। बट क्योंकि अब इतने ज्यादा हम लोगों स्क्रीन्स, मोबाइल्स एंड मल्टीटास्किंग कर रहे हैं कि हम पूरी तरह उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस विल हेल्प इंक्रीज आवर अटेंशन स्पैन एंड फोकस ऑन योर ब्रीथ। द थर्ड पार्ट इज नाउ, जैसे हम लोग काम कर रहे होते हैं, मोस्टली ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, हम कंप्यूटर पे हैं, क्लिनिक्स में हैं, कहीं पे भी जब भी आप काम करते हैं, हम अपनी अवेयरनेस ऑफ बॉडी से दूर हो जाते हैं, हम बॉडी के लिए अवेयर नहीं होते। एंड दैट इज वेयर योगा कम्स इन, यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो हमें इस ब्रीदिंग के साथ साथ थर्ड स्टेप है, आप जब आपने इन ब्रेथ आउट ब्रेथ को फॉलो कर लिया, एंड द थर्ड स्टेप इज बी अवेयर ऑफ योर बॉडी, सी योर बॉडी कहां पे है। एज ए थर्ड पर्सन यू आर एक्चुअली विटनेसिंग योर बॉडी नाउ। सो अब आप थर्ड पर्सन की तरह इसको, बॉडी को अवेयर होंगे। एंड ऑफ कोर्स हम सबको बॉडी में कहीं ना कहीं पेन रहता है, फिजिकल पेन और एंजाइटी, स्ट्रेस और वट एवर मेंटल पेन वी हैव, साइकोलॉजिकली भी कुछ ना कुछ पेन के थ्रू हम लोग जा रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमारा ब्लॉक होता ही होता है। वट एवर लाइफ डिफिकल्टीज वी आर गोइंग थ्रू, उस चीज, उस पेन को, आपने उस पेन को पहले तो, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट ब्लॉक, कहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हमारा स्ट्रेस बना होता है, हम उसको अवेयर ही नहीं होते, हम सोचते ही नहीं उस बारे में, टाइम ही नहीं मिलता हम लोगों को। और उसी वजह से क्रॉनिक स्ट्रेस में हम लोग रहते हैं। एंड देयर आर मेनी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर स्पेशली फॉर वुमेन हु एंड आजकल मेल में भी, मींस वी ऑल आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक बैक पेन, जिसको आजकल मैकेनिकल बैक एक बोल दिया जाता है, या फाइब्रोमाइल्जिया इज गेटिंग वेरी वेरी कॉमन। कोई डिजीज नहीं मिलती, कोई कॉज नहीं मिलता, डॉक्टर आपको जाके बोल देते हैं आप या तो मसल रिलैक्सेंट ले लीजिए, नहीं तो आप कोई एंटी डिप्रेसेंट देना शुरू कर देते ताकि आपकी नींद सही आ जाए। तो फाइब्रोमाइल्जिया, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दीज आर वेरी वेरी कॉमन, नॉट डिजीजेज, आई विल से सिंड्रोम, जो बाकी डिजीजेस के साथ, सबके साथ ही हो रहा है। एंड देन वी एड मेडिसिन फॉर दिस, जिनके आगे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट बॉडी, और बॉडी के बाद उस पेन को आपने काम करना है। द वेयर योर ब्लॉक इज, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। जैसे हमने बात की थी गोल्डन बॉल मेडिटेशन में, कि वी आर विजुअलाइजिंग कि हमारा वो पेन कम हो रहा है, हमारा वो ट्यूमर कम हो रहा है, हमारा वो गांठ कम हो रहा है, हमारा वो वॉट कम हो रहा है, हमारा वो स्किन का लीजन कम हो रहा है। तो वी विल यूज पॉजिटिव विजुअलाइजेशन हियर, कि भाई विल काम आवर बॉडी जहां पे हमारे को स्ट्रेस है। दीज आर 4 बेसिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज नाउ। इसके बाद कुछ एडवांस हैं जो उन्होंने बताई हैं, जैसे दीज एडवांस एक्सरसाइजेज विल बी फोकस्ड ऑन द रियल्म ऑफ फीलिंग्स या इमोशन। जैसे धोनी ने बोला ना कि मैं अपने इमोशंस को बाकी लोगों से बेटर कंट्रोल कर लेता हूं ताकि मैं आज प्रेजेंट में डिसीजन ले पाता हूं। ठीक है, तो द रियल्म ऑफ फीलिंग्स की जो एक्सरसाइजेज थिच नेट हैंड ने बताई हैं, या वेरियस बुद्धिस्ट मॉन्क्स प्रैक्टिस दिस। सो द फिफ्थ इज जनरेटिंग जॉय। जनरेटिंग जॉय का मतलब, यस वी कैन जनरेट जॉय, हैप्पीनेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड ना। मतलब कि कोई भी सिचुएशन है, अगर धोनी के साथ हो रही है तो वो काम रह के उसको फटाफट डिसीजन ले लेते हैं। हम लोगों के साथ होती है तो हम कई बार गुस्सा हो जाते हैं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट सेंट्स, हम लोग 100% तो ये फॉलो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई सो दैट आगे की कुछ डिसीजन तो हमारे हाथ से बेटर हो। फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ पिक्स हैं आपके सामने, आई थिंक इट्स विजिबल। अब ये बच्चा थर्ड आके भी खुश है और जो फर्स्ट आया उसको देख रहा है कि भाई सिमिलरली समवन हैज सो मेनी फ्लावर्स कि एक भी टूट गया तो उसको नुकसान हो रहा है, एक ने बेचारे ने कोशिश करके एक फ्लावर होगा उसी से वो खुश हो गया। ठीक है, आई विल शेयर दिस स्लाइड्स। तो बेसिकली इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लूं, आई स्टडीड वेरी हार्ड फॉर माय यूपीएससी। आई थॉट कि मैं मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट होऊंगा यूपीएससी में। आई गेव द एग्जाम इन 2007-8, वहां पे 13-14 सीटें थी। मैंने 6 महीने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 8 kgs देयर, एंड मेरे बाल भी तभी झड़ने शुरू हुए थे, एंड देन इट ट्रिगर्ड टू मी द मेल पैटर्न बाल्डनेस। तो हुआ क्या था कि मैं बड़ा दुखी रहा, डिप्रेशन में चला गया। उन 6 महीने मैंने सोचा ही नहीं कि अब मैं करूंगा क्या।
बट मेरा यूजुअली एक वो रहता है कि आई डोंट हैव प्लान बी, मेरे पास प्लान बी होता नहीं है मोस्टली। तो मैं एक क्लिनिक तो पास आउट होते ही शुरू कर चुका था अपना सेक्टर 11 में, जो मैंने घर से ही बालकनी में शुरू किया था। एंड देन आफ्टर 6 months आई वेटेड एंड अक्टूबर का टाइम आ गया, आई फेल्ड, मैंने बोला बस बहुत हो गया, स्टार्ट अनदर क्लिनिक। आई बॉट द प्लेस व्हेन आई वाज इन 3rd year, लेकिन वहाँ मैंने शुरू नहीं किया था क्लिनिक। देन आई स्टार्टेड माई सेकंड क्लिनिक, कृष्णा नगर क्लिनिक, एंड देयर इज नो लुकिंग बैक। आई हैव नो प्लान बी, क्योंकि प्लान बी था ही नहीं तो मैं फेल हो ही नहीं सकता था। मुझे पूरा एफर्ट झोंकना ही था कि इन क्लिनिक्स को सक्सेस करना है। तो इट्स ए स्टेट ऑफ माइंड। पहले मैं डिप्रेसिव स्टेट में चला गया था एंड देन आई चेंज्ड माई स्टेट ओनली। तो ये जो हमारे साथ हो रहा है ये तो हमारे हाथ में नहीं है, बट आवर स्टेट इज इन आवर हैंड्स। तो इसीलिए बुद्धिस्ट मॉन्क ये प्रैक्टिस करते हैं, जनरेटिंग हैप्पीनेस। सिमिलरली जनरेटिंग जॉय। जब आप प्रेजेंट में रहते हो ऑफ कोर्स आप पूरी तरह एंजॉय करोगे और डिसीजन भी अच्छे लोगे, तभी आपका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। एंड दैट इज वेयर यू कैन जनरेट जॉय। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट पॉजिटिव विजुअलाइजेशन दे प्रैक्टिस। दैट इज वाई मॉन्क्स हमेशा दूर दराज के इलाकों में अकेले रहते हैं, जहां पे बहुत उनको डिटैच करना आसान हो जाता है। एंड दैट इज वेयर उनकी विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स इतनी ज्यादा शार्प हो जाती हैं कि थोड़े से टाइम में वो विजुअलाइज हो जाते हैं वो, और फिर वो प्रैक्टिस कर पाते हैं इसको और अच्छे तरीके से। देन कम्स अवेयरनेस ऑफ द पेन। अगेन जैसे मैंने बोला, हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लॉकेज होता है जो हमें डिप्रेस करता है, जो हमें क्रॉनिक स्ट्रेस देता है। यू कैन नेम इट एज ए स्ट्रेसर। ठीक है, अब उस स्ट्रेसर को पहले अवेयर तो हो, रियलाइज तो करें कि ये स्ट्रेसर है हमारी लाइफ में, ये प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में। उस प्रॉब्लम को तभी हम सोल्यूशन की तरफ जा पाएंगे, नहीं तो वो स्ट्रेस बना रहेगा, हमें बीमारियां देता रहेगा, वेरियस डिजीजेस वी गेट। तो जब तक हम वो स्ट्रेसर को अवेयर नहीं होंगे हम उसके पे काम भी नहीं कर पाएंगे। एंड देन द 8th एक्सरसाइज, द फाइनल वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। जब आप अवेयर हो गए उस पेन को, जब अवेयर हो गए उस स्ट्रेसर को, अवेयर हो गए उस पेन पॉइंट को आप अवेयर हो चुके हो, मे बी इट इज योर बिजनेस, इट्स योर स्टडीज, वट एवर बी, जो भी आपका काम है या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वट एवर इट इज, अब आपको उसको काम करना है। यू विल काम योर डाउन। जैसे धोनी ने बोला ना, मैं काम करता हूं अपने आप को, मुझे भी गुस्सा आता है, एंड देन ही टेक्स द डिसीजन। तो आप काम कीजिए अपने उस पेन पॉइंट को, वर्क ऑन इट, एंड देन इसके साथ साथ इन ब्रेथ और आउट ब्रेथ चलती जा रही है। दे आर प्रैक्टिसिंग ब्रीदिंग रेगुलरली, और ब्रीदिंग के साथ फिर ये टेक्निक, क्योंकि एक तरफ से तो वेगस नर्व को हैक कर रहे हैं, डिक्रीजिंग देयर हार्ट रेट, डिक्रीजिंग देयर ब्रीथिंग रेट। अब उससे उनको और विजुअलाइजेशन करने में, फोकस करने में आसानी आती है, अटेंशन स्पैन बढ़ता है, एंड देन दे आर यूजिंग पॉजिटिव विजुअलाइजेशन। इट इज द एडवांस ऑफ व्हाट वी हैव लर्नड और प्रैक्टिस्ड इन गोल्डन बॉल मेडिटेशन, जैसे हमने प्रीवियस आई थिंक सेशन नंबर 9 में हमने प्रैक्टिस किया था। ऑफ कोर्स इसमें हम लोग कोई मास्टर नहीं हो सकते, आई एम नॉट ए मास्टर हियर, बट आई वांट टू शेयर माय इनसाइट, माय नॉलेज विच आई हैव, बिकॉज ये फाइनल सेशन है इस बैच का। जो हमने डाइट, एक्सरसाइज और ये सब आपको सिखाना था वो तो सिखा ही दिया, वो तो बहुत और जगह से भी आप सीख सकते हो, बट दे ब्रीदिंग, जिसको सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड प्रोटोकॉल या एक्सरसाइज मानते हैं, जब से मैं ये प्रैक्टिस करने लगा हूं, स्विमिंग में मैंने आपको भेजा था कुंभक के बारे में, जैसे मैंने प्रैक्टिस की। यू कैन ट्राई दिस, प्रैक्टिस करिए और इससे आपका स्ट्रेस कम रहेगा। अनदर थिंग ऑल्सो, जब अब ये द ग्रास इज नॉट ग्रीन ऑन द अदर साइड, द ग्रास विल बी ग्रीनर वेयर यू कीप वाटरिंग इट। इस बात को याद रखिएगा। ये बैच खत्म हो गया, हमारा ग्रुप ओपन रहेगा, हमें अभी भी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप मोटिवेशनल जो अपने आप स्क्रीनशॉट्स भेजते हो एक्सरसाइज के, रनिंग के, यू कीप डूइंग दैट, आप उसको इम्प्रूव करते रहिए। जैसे आपकी रनिंग स्पीड सबकी इतनी बढ़ती जा रही है, आप इतने अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए। द ग्रास विल रिमेन ग्रीनर अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हुए। हमारा इस पूरे प्रोटोकॉल को, इस पूरे प्रोग्राम को बनाने का एम क्या था, हम आपके बिहेवियरल चेंज सिखाना चाहते थे आपको, जो आपकी आदत बन जाए, जो बिहेवियर बन जाए आपका। विद इन 3 months हमने अपनी प्रोटोकॉल्स आपके साथ शेयर करी है। अब आपको उसको प्रैक्टिस में लाना है, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी, सो दैट ये जो हमने एक रेवोल्यूशन शुरू किया आपकी हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, ये बढ़ता जाए।
एंड ऑल्सो शेयर विद अदर्स, जो आपको सीख लिया है औरों को भी ठीक करो आप, बी ए रोल मॉडल और इंस्पिरेशन फॉर देम। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू दैट। ये ग्रुप हमेशा ओपन रहेगा, डॉक्टर गरिमा और मैं कोई भी क्वेरीज होंगी आपकी उसको सपोर्ट करते रहेंगे, जब जब जरूरत पड़ेगी, जब जब जैसा आपको लगेगा, विल कीप आंसरिंग एनी क्वेरीज। जो हम नई चीजें सीखेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और हमारा नेक्स्ट सेशन 11 जून को होगा, विच विल बी ए फेयरवेल कम रिवीजन सेशन फॉर यू। देयर विल बी मोर पीपल, जो लोग इंटरेस्टेड हैं फ्यूचर बैचेस के लिए वो लोग भी वहाँ होंगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर इंसाइट्स कि आपने आपके फीडबैक्स इस प्रोटोकॉल को लेके कि कैसा रहा आपको, ये कैसा प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया, कुछ कमियां हैं वो भी बताइए ताकि हम इसको फर्दर इम्प्रूव करें। और आपके फीडबैक से लोग मोटिवेट होने चाहिए या लोग मोटिवेट होंगे। आपको जो अच्छा लगा प्रोग्राम में वो भी लाइव बताइएगा, जो खराब लगा वो भी बताइएगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन फॉर दैट सेशन। आई विल नोटिफाई द लिंक बाय नेक्स्ट थर्सडे और फ्राइडे। तो 11 जून को होगा वो सेशन। आई वुड रिक्वेस्ट टू, और इन दी एंड मैंने एक छोटी सी ड्राइंग्स बनाई है। एक चीज इसमें रहेगी जो मैं बताना चाहता था। बुद्धिज्म जो है ना, बुद्धिज्म हमारे माइंड को 2 हिस्सों में बांटता है। वन इज स्टोर, द अदर इज मेंटल फॉर्मेशन, MF। ठीक है, स्टोर इज लाइक सबकॉन्शियस माइंड आप कह सकते हो इसको, एंड MF इज योर कॉन्शियस माइंड। ओके, तो जो हमारी फीलिंग्स होती हैं ना, सारी फीलिंग्स यहाँ स्टोर में रहती हैं अनकॉन्शियस माइंड में, बीज की तरह, लाइक सीड्स। इसमें एंगर भी है, डिसअपॉइंटमेंट भी है, फेलियर भी है, जैसे मेरा अपना एग्जांपल दिया मैंने आपको। वहां पे हैप्पीनेस भी है, माइंडफुलनेस भी है। हम खाना तो रोज खा रहे थे, इस प्रोटोकॉल को ज्वाइन करने से पहले आप लोग खाते थे, टीवी देखते थे, पता नहीं खा भी रहे थे कैसे। अब कुछ चेंज लग रहा है आपको कि आप माइंडफुली चबा के खाते हो, यू फील द टेस्ट बेटर, आपकी आधी डाइजेशन मुंह में ही हो जाती है। दैट इज वेयर माइंडफुलनेस कम हियर। अब इन बीजों में जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं, अब इन बीज में आप जिसको ज्यादा पानी दोगे वही बीज बड़ा होके मेंटल फॉर्मेशन का रूप लेगा। लाइक अगर आप एंगर को बढ़ाओगे तो एंगर ही बढ़ेगा, बट इसी के सामने हम हैप्पीनेस और माइंडफुलनेस को भी बढ़ा सकते हैं। आपको किसको पानी देना है ये अब आपके हाथ में। बीज तो हमारे सबके सब इमोशंस के हमारे पास हैं। लाइक यहाँ पे सेल्फ डाउट है, इसको मैंने पानी नहीं दिया। एंगर और गिल्ट है, इसको भी नहीं दिया। आई एम ए वेरी सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, तो मैं प्रॉब्लम को भी ज्यादा पानी नहीं देता। प्रॉब्लम आ गई हमें पता है, उसी से वरीज होती है। तो लेकिन प्रॉब्लम तो है ही, अब या तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसका हमारे पास सोल्यूशन है, या फिर सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो मैंने सोल्यूशन को पानी दिया, ये सोल्यूशन बड़ा होकर फूल भी दे रहा है एंड फ्रूट्स भी दे रहा है। सिमिलरली सक्सेस को हम दे सकते हैं पानी। इट इज ऑल अपॉन अस कि हम अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी कहाँ खर्च रहे हैं। इट इज ऑल अबाउट चैनलाइजिंग योर एनर्जी इन ए पॉजिटिव मैनर। दैट इज ऑल अबाउट बुद्धिज्म। बुद्धिज्म है ही ये। बुद्धिज्म डज नॉट से कि कल कोई पुनर्जन्म होगा या एक प्रीवियस जन्म में आप थे। वो सिर्फ जो भी बोलते हैं आज जीने को ही बोलते हैं। बेसिकली है भी वही, पुनर्जन्म ना आपके हाथ में ना, जैसे धोनी ने बोला ना, वरी अबाउट द कंट्रोलेबल्स ओनली। तो आप सोल्यूशन देखिए, जो कंट्रोलेबल है वो तो आप वरी कर ही सकते हो, जो कंट्रोलेबल नहीं है उस पर वरी करने का वैसे भी कोई पॉइंट नहीं है। तो इट इज अबाउट चैनलाइजिंग योर एनर्जी इन ए पॉजिटिव मैनर। आई हैव आल्सो शॉर्ट लिस्टेड फ्यू, बिकॉज मैं तो भगवत गीता को एक साइंटिफिक बुक मानता हूँ। आई फ्यू शॉर्ट लिस्टेड क्योंकि बुद्धिज्म से पहले सनातन धर्म आया था। तो बुद्धिज्म की जो टीचिंग है, बुद्ध भी हिंदू थे, बुद्धिज्म की टीचिंग्स भी कहीं ना कहीं से सनातन से जरूर जुड़ती है। ऑफ कोर्स देयर कॉन्सेप्ट्स ऑफ पुनर्जन्म, जो भी उन्होंने रीइंकार्नेशन को भी, अब दलाई लामा इज काइंड ऑफ ए रीइंकार्नेटेड जो वो बोलते हैं, तो दे हैव एक्सेप्टेड दैट आल्सो in terms of their religious belief. I won't get into it, but chapter 2 जो गीता का सार है, chapter 2 का I think श्लोक नंबर 27, इसमें यही लिखा है कि सारे जीव प्रारंभ में भी अव्यक्त थे, मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते। मतलब हम लोग पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे। और क्वांटम फिजिक्स के बारे में अगर सोचे तो वो ये कहते हैं हमारी बॉडी कोई बॉडी नहीं है, इज जस्ट वाइब्रेटिंग एनर्जीज। क्वांटम फिजिक्स यही बोलता है, ठीक है।
और क्वांटम फिजिक्स के जितने भी नोबेल लॉरिएट्स रहे हैं, डॉक्टर बोर्ड हैं या अल्बर्ट आइंस्टाइन है, या ये इन सब के बारे में आप पढ़ोगे, वो वेदों की बहुत बात करते हैं, गीता की बहुत बात करते हैं। तो क्वांटम फिजिक्स का जनरेशन वो लोग बोलते हैं वेदों से हुआ है या बुद्ध गीता से हुआ है। तो इट्स और हम वाइब्रेटिंग एनर्जी के ही रूप हैं, अगर ये मास नहीं है तो अगर हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चैनलाइज करेंगे तो बॉडी ऑटोमेटिकली ही ठीक होगी। एंड देयर हैव बीन केसेस जिन्होंने विजुअलाइज करके ट्यूमर्स को कम किया है, ठीक किया है। तो व्हाई कांट वी डू दैट एंड फॉलो दिस प्रैक्टिस इन द लॉन्ग टर्म। ऐसे ही श्लोक नंबर 38 है, सेम चैप्टर, सेकंड चैप्टर का ही। ये जैसे MS धोनी ने बोला है ना, द प्रोसेस। धोनी कभी गीता का नाम नहीं लेते, पता नहीं उनको ऑटोमेटिकली शायद आ गई होगी। तो उसमें यही लिखा है, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो। जैसे MS धोनी ने बोला ना, हार जीत मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं सोचता। ही फोकस ऑन द प्रेजेंट। जो डिसीजन आज लेना है, किस बॉलर से बॉलिंग करानी है, किस बैट्समैन को कहां करना है, कैसे किसी को आउट करना है, दैट इज द मेन रीजन बिहाइंड हिज सक्सेस विच आई एनालाइज्ड। ऐसी क्षमता ही योग कहलाती है। ये कृष्ण जी ने लिख दिया है साफ साफ। योग जो वर्ड बोलते हैं ना, इट इज मेनली आप गर्मी, सर्दी, हानि, लाभ, रोग, निरोग, ये सब द्वैत बोलिए। इन सबसे ऊपर उठ के जब आप अपना काम कर पाते हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका लाइफ एम या गोल है, फंक्शन है, आई थिंक दैट इज द होल पर्पस ऑफ बुद्धिज्म, दैट इज द होल पर्पस ऑफ योगा, दैट इज द होल पर्पस ऑफ ऑल ब्रीदिंग टेक्निक्स विच वी। एंड सिमिलरली श्लोक नंबर 48, सॉरी 48 तो यही था, 38 आई मिस्ड, गिव मी अ मिनट। यस, 38 अगेन वही बात आ गई प्रोसेस की, जो MS धोनी ने भी बोला है। कृष्ण जी यहां लिखते हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय के विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ठीक है, तो दैट इज द होल पर्पस ऑफ दिस टेक्निक।